Hello everyone, welcome to the video lecture series of class 10th political parties, civics political parties. So in which we are studying about, we are covering the course of civics. Students, here I'm just going to explain you the very next lecture of political parties. Students, you will get to know here after knowing the meaning of political parties, then after functions, very important topic, functions of political parties. Right now we are going to study one more important topic, which is necessities of political parties. All right, so today we are going to study about necessities of political parties. So I request everyone to watch the lecture so that you will be able to know what are the necessities of having a political party. Okay, so let's see everyone. Let's start it right now. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका वेलकम कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि हर कोई जो है इस लेक्चर के साथ जुड़ेगा, so that we would be able to even enlarge our knowledge of political parties. So let's see everyone without wasting much of our times. This list of function in a sense answers the question asked above. Okay, this list of functions, जो list of functions हमने last lecture में पढ़े, in a sense answers the question asked above, ये ऊपर के question का answer देता है that why do we need a political party. Okay, why do we need a political party. So it gives us an answer, okay, of this very question. So students, we need political parties because, okay, you see the answer of it, we need political parties because हमें political parties की ज़रूरत होती है, because they perform all these functions. क्योंकि political parties ये सारे functions perform करते हैं, means the functions like parties contest elections, parties play a decisive role in making laws, parties form and run government, parties play the role of opposition, parties shape the public opinions, parties provide access to government machineries and welfare programs or schemes. Okay, so for all these we need a political party. इन सब चीज़ों के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, but we still need to ask, but हमें ये पूछने की अभी भी ज़रूरत है. Okay, we still need to ask, हमें ये पूछने की आवश्यकता है, why modern democracies cannot exist without political parties, कि modern democracies बिना political parties के exist क्यों नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं रह सकती हैं. ठीक है, मीन्स मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर हम उसको इमेजिन करें, सो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ why could we not imagine a democracy. Okay, so we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. अब आप इस चीज़ के लिए बच्चों आप एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम कीजिए वेयर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस. अब देखिए यही प्रॉब्लम्स हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि सारे कैंडिडेट्स फ्रीली इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और किसी को कोई भी कैंडिडेट जो है वो एबल नहीं होगा टू मेक एनी प्रॉमिस, ओके, टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज. कोई भी कैंडिडेट किसी मेजर पॉलिसी चेंज को लेकर के कोई भी प्रॉमिस किसी से नहीं कर पाएगा. ओके, सो द गवर्नमेंट मे बी टर्म्ड
और गवर्नमेंट क्या होगी, वो टॉम्ड हो जाएगी, बट इट्स मीन्स इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। जो इस पार्टी की पार्टी न होने से जो गवर्नमेंट की उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो क्या होगा कि वो अनसर्टेन हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, मीन्स जिस लोकेलिटी के लिए वो इलेक्ट हुए हैं उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन इस बात के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि देश को कैसे रन करना है, हाउ द कंट्री शुड रन। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। We can also think about it by looking at non-party based elections to the panchayat in many states. We can also think about, हम ये सोच सकते हैं about it, इसके बारे में, by looking at the non-party based elections। जो non-party based elections हैं उसको देखते हुए हम इसके बारे में सोच सकते हैं। To the panchayats in many states, बहुत से states में पंचायत जो इलेक्शंस होते हैं वो विदाउट पार्टी गाइडलाइंस और विदाउट पार्टीज अम्ब्रेला होते हैं, मींस किसी भी पार्टी की छत्र छाया में इलेक्शंस नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ते हैं। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, भले ही वहाँ पार्टीज डायरेक्टली कॉन्टेस्ट ना करते हों, सीधे इलेक्शंस ना लड़ते हों, इट इज़ जनरली नोटिस दैट, जनरली ये नोटिस किया गया है दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन। तो क्या होता है, कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं और उससे गांव जो है कई हिस्सों में, टुकड़ों में बढ़ जाता है, उनकी ओपिनियंस कई हिस्सों में बढ़ जाती है। ईच ऑफ विच पुट अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, और हर किसी के पास अपना पैनल ऑफ कैंडिडेट्स होता है। ओके, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट पार्टीज डज। हर पार्टी के अपने पैनल ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और यही पार्टीज़ का काम होता है। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हम दुनिया के हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम के इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्ट पाते हैं, देखते हैं कि हर जगह, हर कंट्री में दुनिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास पैनल्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वो बेहतर कैंडिडेट्स को चुन करके लाते हैं, ठीक है, और हमारे लिए उनको कैटर करने का मौका देते हैं जिससे कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके हमारा। वेदर दीज कंट्रीज़ आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग, चाहे देश कुछ भी हो, चाहे वो बड़ा देश हो, छोटा देश हो, पुराना देश हो, नया देश हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, ये सभी ये सभी जितने भी होते हैं, ये सभी जो हैं इन सभी को पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो जो राइज होता है, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज सीधे जुड़े होते हैं एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसके साथ सीधे जुड़े होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बड़े समाज होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। बड़ा देश हो गया, बड़ी पॉपुलेशन है, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशंस नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। कोई किसी के लिए रिप्रेजेंट लीडरशिप नहीं करता है, किसी की बातें, किसी की प्रॉब्लम्स कोई उठाता नहीं है, और सबके डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिटिकल। तो सो एज सोसाइटीज़ बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, ओके, समाज क्या होते हैं, वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बड़े और, ठीक है, जो जटिल हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट वेव्स, उन्हें कुछ ऐसे एजेंसीज़ की आवश्यकता होती है जो अलग अलग वेव्स को इकट्ठे यूनाइट कर सकें
ऑन वेरियस इश्यूज़, जहाँ अलग अलग मुद्दों पे लोगों की अलग अलग राय होती है, उनको यूनाइट कर सकें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है और ऐसे इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं। एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, और ऐसे सारे इश्यूज़ को इकट्ठा करके सरकार के सामने जो रख सकें, ऐसे लोग जो हैं इसमें इनवाइट पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दे नीड सम वेज, उन्हें कुछ रास्ते की आवश्यकता होती है टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, जिससे कि वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ ला सकें, सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, जिससे कि एक जिम्मेदार सरकार जो है वो बन सके। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, उन्हें एक मैकेनिज़्म की आवश्यकता होती है, किसी भी देश को एक तंत्र की आवश्यकता होती है, सब सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो सपोर्ट और रिस्ट्रेन कर सके सरकार को या तो उसका समर्थन कर सके या सरकार का विरोध कर सके। सो मेक पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ बना सके, जस्टिफाई और अपोज देम ना, पॉलिसीज़ को जस्टिफाई कर सके या उसका विरोध कर सके। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफ़िल दीज नीड्स है, और ये सब करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैज़, जिसके अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में होते हैं वो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर पाने में सक्षम होते हैं। दे कैन से दैट पार्टीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, वो कह सकते हैं कि पार्टीज़ इसीलिए एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। मीन्स डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉसिबल नहीं होती है, ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट देन डेमोक्रेसी। ओके, देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल दैट to have a political party in every kind of in every demographic conditions of a country. Okay, this is what exactly the explanation for today's lecture, students. Next we shall meet a very important topic. Okay, that would be the number of parties one country should have. Okay, so it will be studied next day. How did you feel this lecture? How did you experience this lecture? Please share me, comment me, share this video to others, like and also subscribe the video so that you could get the notification, and also put the bell icon so that you could get the notifications. Thank you. Have a good day, everyone.